Yes, from this page we were supposed to start. Yes, Vita. So, as you know that we are doing our chapter Nationalism in India. So till now we have read about the arrival of Mahatma Gandhi in India from South Africa in 1915. After that he started his Satyagraha movements or Satyagraha Andolan, and famous Satyagraha Andolans are Andolans means agitations. Okay, they are, one is of Champaran, one is of this Kheda, Gujarat, and one is of cotton mill workers सत्याग्रह in Ahmedabad. ठीक है, ये हमने किया है. उसके बाद महात्मा गांधी started this non-cooperation movement. Various people from different parts of the society, including people of middle classes, in middle income classes from towns or city areas, they participated. Then this farmers from countryside, that means villages, they also participated. Then tribal people, then workers who were working in plantations, they also participated. Different people, they had their own problems and they wanted to get solution of those problems, and that's why, keeping in view their own personal these problems, they participated and felt that this if once they participate in this non-cooperation movement, तो जो है their problems of their routine life, they will come to an end and they will get Puran Swaraj. They will get Swaraj. For them, Swaraj does not mean did not mean the independence of the country. For them, Swaraj means this freedom from their own daily life problems. They meant only this from their by following this method. Okay. After that, we saw that after Chauri Chora incident, this Mahatma Gandhi he called this movement back and called off this movement. And then after that, what happened? Then we talked about civil disobedience movement. Okay, and then in this civil disobedience movement, he started with the, just a minute, Vita, let me make. Ma'am, you are the host now. Yes. हाँ So, जी मैम, गुड मॉर्निंग. good morning, ma'am. So, with the this beginning of Salt March, this civil disobedience movement started. Yesterday we have told about this, and then in this civil disobedience movement, Mahatma Gandhi requested people not only to non-cooperate with the British government, but also to break the laws of the government. See, in the initial moment, he did not say that people, he did not advise people to break the laws. But in this civil disobedience होता है, this word comes from obey. Obey को क्या हम कहते हैं? किसी की बात को मानना. और डिसोबे का मतलब ना मानना. सिविल का मतलब आम लोग, आम पब्लिक, कि भी सारे जो आम लोग हैं, दे शुड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, रादर दे शुड ब्रेक दोज रूल्स. So that is why this movement is known as civil disobedience movement. So after that, as I told yesterday, Lord Irwin, he asked Gandhiji to come for discussion for a roundtable conference meeting, and later on Gandhiji sent one letter to him. In that letter, various demands of the ordinary people, they were mentioned in that, and all that happened. And in the end, this movement got its lost its momentum, lost its popularity, because no desired result was seen by the people and as well as by गांधी जी. जो सोच के ये किया था वैसा कुछ हुआ नहीं खास, तो फिर ये मूवमेंट एकदम से स्लो डाउन हो गई, जिसको बोलते हैं ना ठंडे पड़ जाना, कि आगे कोई कुछ रिजल्ट निकला नहीं इस मूवमेंट का. देन अगेन, अब है नाउ the part which we have to do today, how participants. तो फर्स्ट है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, लोग थे, which type of people they participated in this civil disobedience movement, what were their expectations, and what happened to them. And second time when this civil disobedience call for this movement was given by Gandhiji again, then how did they react? This we are going to read in this, like you can see in this first para. Two names are there, you can underline in the very first line. This in the countryside, rich peasant communities like Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. ठीक है, अब ये क्या है? Suhanna Bindra, sit properly. Just settle down, all of you.
settle down, just listen to me carefully, nothing else is to be done, you just have to understand the lecture. Yes. सो जो पाटीदार्स है वो आपने नाम सुना होगा गुजरात में पटेल कम्युनिटी जो है, पटेल नाम सुना होगा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल. अभी रिसेंटली देयर वाज वन यंग लीडर हु केम इनटू दिस जनरल पॉपुलर आइडिया, हार्दिक पटेल, आपने सुना होगा नाम. तो ऐसे पटेल एक कम्युनिटी का नाम है, पीजेंट कम्युनिटी, वेल ऑफ कम्युनिटी है, कोई पुअर पीजेंट्स नहीं थे. ऐसे ही जो वेस्टर्न यूपी है वहां पर जो जाट है, जिसको पंजाबी में हम जट बोल देते हैं, तो वेस्टर्न यूपी साइड के जो जाट कम्युनिटी है वो भी एक पीजेंट कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है. तो ये जो बोथ ऑफ देम दे वर एज वेल एज राइट नाउ आल्सो दे आर वेल ऑफ कम्युनिटीज, पीजेंट कम्युनिटीज, कोई मतलब छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे है. तो रिच कम्युनिटीज हैं. तो at that time when this civil disobedience movement started, so people of peasants of these two communities, they participated with this expectation कि by participating in this movement their this revenue demand that will be because they had to pay revenue to the government, so at that British government, so they expected कि after participating in this movement they will not have to make payment of that revenue to the government, they will get freedom from this revenue. Why? Because I told you earlier, in 1929 onwards, there was worldwide economic depression, जिसमें normally जो prices of the commodities they were falling, items or commodities or production of the producers, especially agricultural producers, that was not getting sold in the market because normally people were not having demand. तो जब लोगों की डिमांड नहीं होती है, जाके लोग परचेज नहीं करते हैं, बाय नहीं करते हैं, तो चीजों के प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. आपने देखा होगा उन्हीं चीजों के प्राइस बढ़ते हैं विच आर हैविंग मोर डिमांड, जिसकी ज्यादा मांग होती है उसी की कीमत भी बढ़ती है. बट एट दैट टाइम जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की देयर वाज नॉट मच डिमांड, तो उसके प्राइसेस दे स्टार्टेड कमिंग डाउन. तो ऐसे ही दिस इफेक्ट वाज फेल्ट बाय दिस पटेल कम्युनिटी, पाटीदार कम्युनिटी, पीजेंट्स एज वेल एज जाट्स. तो उनकी प्रोड्यूस बिक नहीं रही थी, तो money was not coming to them. When money was not coming to them, तो how could they be able to make payment of revenue to the British government? जब पैसे इनकम ही नहीं आ रही है तो कहाँ से देंगे? तो उनको लगता था कि by participating, by following गांधी जी, तो उनकी ये डिमांड मान ली जाएगी कि भाई now they didn't have to make payment of revenue. But ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो जब second time this civil disobedience call for this movement was given, तो they were not very enthusiastic. आपने देखा, आप अपना एग्जांपल लो, जब कोई एक बार काम करते आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो सेकंड टाइम फिर अगेन इफ यू आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट, तो आपका उतना एनकरेजमेंट नहीं होता है, आपका उतना इंटरेस्ट नहीं होता है उस बात में, क्योंकि पहले आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो. तो इतना ज्यादा एंथुजियाज्म वाज नॉट देयर अमंग दीज कम्युनिटीज. उसके बाद और कौन से पार्टिसिपेंट्स थे? पीजेंट्स. सी अभी आई हैव टॉक्ड अबाउट रिच लैंड ओनर्स, एक तरह से कह सकते हैं, पटेल्स, पाटीदार्स एंड जाट्स. अब सेकंड थे जो आम पीजेंट्स थे. आम पीजेंट्स होते हैं जिनके पास ज्यादा, दोज हु डिडंट हैव देयर ओन लैंड्स, दोज हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स, दे वर वर्किंग एज टेनेंट्स. टेनेंट होता है ना, दूसरों की लैंड पे काम करने वाले. तो उन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? बिकॉज they were working as tenants, so they had to make payment of rent to the landlord. I think I don't remember in which class I gave this example. जैसे आप रेंटेड हाउस पे रहते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, तो ऐसे ही जो फार्मर्स दूसरों की लैंड पे काम करते हैं तो उनको उस लैंड लॉर्ड को, लैंड ओनर को रेंट देना पड़ता था. ठीक है. तो अब जो आम पीजेंट्स थे, देयर डिमांड वाज कि भाई इनकम नहीं हो रही है उनको, या देयर वेजेस वर वेरी लेस, money income was very less, so they expected from this civil disobedience movement that their rent will be discarded. मतलब now they didn't have to make payment of rent. उनको अपनी जिस जमीन पे काम कर रही है उसका किराया नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. तो अब ये जो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब उसके सामने प्रॉब्लम वाज कमिंग कि दे डिड नॉट वांट टू लूज द सपोर्ट ऑफ रिच पीजेंट कम्युनिटी, रिच लैंडलॉर्ड कम्युनिटी, as well as they did not want to hurt the feelings of peasants. क्योंकि उस समय एक ही पार्टी तो नहीं कहेंगे. at that time it was this Indian National Congress party was made for freedom purpose. So they did not want to lose support of the rich farmers as well as poor peasant farmers. तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने आम पीजेंट्स के साथ कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाई, तो उनकी बातों को आगे नहीं रखा, उनको ज्यादा अपना आगे आगे लेके नहीं आए. ठीक है. उसके बाद आ जाता है कि नाउ इन द सोसाइटी ओनली पीजेंट्स आर नॉट देयर.
every type of people are there. So there were industrialists also. तो अब जो industrialists थे, अब उनकी क्या डिमांड थी? Their demand was to give them freedom, to make them free from different kinds of restrictions which were imposed by the colonial government on their this export and import of different items. Means whatever restrictions were imposed by the British government on Indian industrialists, on what? On exports and imports. So these industrialists wanted freedom from those restrictions and controls. Restriction क्या होता है? पाबंदियां लगाना कि भी आपने इतना ही एक्सपोर्ट करना है, आपने you can import only this much of commodities, this much quantity of different commodities. मतलब हर बात पे पाबंदियां थी, restrictions थी. नाउ जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी? दे वांटेड दिस टाइप ऑफ फ्रीडम. तो अर्लियर व्हेन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो उन्होंने दे पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन द होप that they will come to have, they will be able to get this type of freedom, they will be free to do this production and trade as per their own wishes, अपने accordingly करेंगे. But any fruitful result did not come to them. उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ. और उसमें एक two famous names have been given. G.D. Birla, one you can underline in between the paragraph. Purushottam Das, Thakur Das, these were the prominent industrialists of private sector at that time. But later on, जो थे ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी भी, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज टू दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस. हेल्प भी करते थे कि भी हमारा भी काम होगा, हमारी भी बात होगी. बट अल्टीमेटली दे डिड नॉट गेट एनी satisfactory result by participating in this movement. So when second time call was given, so they were not enthusiastic. ठीक. उसके बाद लास्ट पैरा में है इंडस्ट्रियल वर्कर्स. अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, देयर this participation in this movement was very less. Very few workers at scattered places they participated, but overall majority of the workers, they were not working, yeah, they were not participating in this movement of Indian National Congress Party. इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे. Why? Because those workers were being more influenced by various socialist and communist parties. ये भी हम आगे करेंगे, एक चैप्टर उसमें आ जाएगा ये. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट था. वर्कर्स को लगता था कि उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी एट दैट टाइम, दे वर कीपिंग द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स इन ए बेटर वे, ऐसे कह सकते हैं. तो वर्कर्स के लिए काम करना, तो वर्कर्स को लगता था कि उधर उनकी ही बात सुने, कि दो इधर उधर नहीं हो, हम लोग एक तरफ ही रहें. तो वर्कर्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. बट स्कैटर्ड जो वर्कर्स थे somewhere, मतलब in some part here, one example is given, I think. This railway workers and dock workers, they made the strikes, काम हड़ताल कर देना, काम बंद कर देना. तो ऐसे इक्का दुक्का जिसको बोल सकते हैं ना, स्कैटर्ड ही बोल सकते हैं उसको, मतलब समवेयर और द अदर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन किया, बट ओवरऑल देयर वाज नो पार्टिसिपेशन बाय वर्कर्स. ठीक है. वन वर्ड हैज कम हियर, डॉक वर्कर्स. डॉक वर्कर्स कौन से होते हैं? रेलवे वर्कर्स. तो दिस वर्ड इज सिंपल क्लियर टू यू. जो रेलवेज में काम करते हैं या मैनुअल काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं. तो डॉक वर्कर्स वो लोग होते हैं जो जहाँ पर पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे शिप्स में जो सामान की लोडिंग और अनलोडिंग जो लेबर वो काम करती है, या जहाँ पर शिप्स की रिपेयर होती है, जहाँ पे शिप्स को थोड़े टाइम के लिए रोका जाता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स के आसपास, पोर्ट्स एरियाज में, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को कहा जाता है डॉक वर्कर्स. ठीक है. DOC के डॉक वर्कर्स मीन्स वो एरिया जहाँ पे शिप्स के अंदर लोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर. मैनुअल वर्ड का मतलब होता है फिजिकली काम करना, मजदूरी का काम करना. तो जो वर्कर्स ऐसा काम करते थे, उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर दी, इस तरह से किया. बट ओवरऑल मेजोरिटी वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, majority of workers was not interested in this civil disobedience movement. Okay. Then last section of the society, that is related to women. अब role of women, women also constitute 50% of the population. So at that time also many women from city areas, from town areas as well as from village areas, they came out of their homes and very enthusiastically, in a very inspirational manner, they participated. They followed the teachings of Gandhiji and manufactured salt, and then protest marches or rallies
जहाँ पर भी फॉरेन क्लॉथ की जो शॉप्स होती थी उसकी पिकेटिंग होती थी, मतलब उनको बंद करवाना, या लिकर शॉप्स को बंद करवाना. In this type of activities, protests, they participated in a very positive manner. But still, many of them, they went to jail also. Many of them, many of the women, whether their families were not happy, but still they participated. But one thing was there, Gandhiji and other important leaders of that time in the Indian National Congress Party, they were of this view that the prime responsibility of the women is to be at home and to take care of their family. Means they should not, there is no much need of women to come out of the homes and participate in this type of political activities. Gandhiji was not in favor of this type of participation. But even then, even though he did not like this much, but still women participated in this civil disobedience movement. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, rich communities like patidars and jats, उसके बाद peasants, poor peasants, उसके बाद industrialists, उसके बाद workers. Now see carefully, इनका जो participation था when second time call was given, that was not very responsive, that was not very much positive, that was not very encouraging. But the role of women was quite encouraging in spite of Gandhiji's views, but still their role was very positive role. ठीक है, अब लास्ट है कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लिमिट्स होता है लिमिटेशंस, शॉर्ट कमिंग्स वी कैन से. कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि इतने लोग व्हेन दे वर पार्टिसिपेटिंग, तो कुछ सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर देयर हु वर नॉट participating in this movement, who were not happy with the viewpoints of या ideology of Gandhiji's related to different sections of the society. आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर कोई मूवमेंट होती है तो ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी दे नेवर पार्टिसिपेट. अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेजोरिटी पार्टिसिपेट्स, तो वी से दैट बी दिस मूवमेंट हैज प्रूवन टू बी ए सक्सेसफुल मूवमेंट. अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, देन वी से कि मूवमेंट इज अनसक्सेसफुल. बट मेनी पीपल एट दैट टाइम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, 1930s का जो टाइम है, तो उस समय क्या हुआ, अब जो गांधी जी थे एट दैट टाइम इन आवर सोसाइटी देयर वाज very much problem of untouchability. तो गांधी जी's view was that कि जो untouchables हैं, they should also be brought in the mainstream of the society. They were also the equally important parts of society. So गांधी जी wanted them to incorporate, कि सबको साथ लेके चलना चाहिए. All members, all people of the society, they belong to one country, तो सबको साथ में मिलके आना चाहिए. And that is why he gave a special name to untouchables, and that name was Harijan. Harijan मतलब जन means people, लोग, people of God. हरि means God, भगवान के लोग, मतलब एक respectful name दिया. ठीक, अब जो गांधी जी का व्यू पॉइंट था, then he himself he argued and he convinced people that we should do all the works which were done by the untouchables. We should do all those works ourselves. क्लीनलीनेस का है या टॉयलेट क्लीनिंग का काम है या कुछ भी है, कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, हम अपनी क्लीनिंग खुद क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी साफ सफाई क्यों नहीं रख सकते. व्हाई डू वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू दिस काइंड ऑफ मीनियल वर्क फॉर अस. तो ये उनका व्यू था, दैट वाज वेरी गुड व्यू. बट नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल पीपल वुड एग्री विद हिम. उनके साथ ही सबका राय एक जैसी होगी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट माइंड्स, दे हैव डिफरेंट ways and processes of thinking, सबका अपना अपना होता है. तो at the same time there was another important leader, a very popular leader, you know, all of you, I hope you know him very well, Dr. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. So he was also emerging as a very famous leader at that time. He was also struggling to be a leader, very well educated leader of that time. तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी. See, the point here is not of struggle among people. Point is only of ideology. तो his viewpoint was that डॉक्टर अम्बेडकर का, कि भी जो इंडिया है या भारत है एट दैट टाइम, कि उसमें 3 main communities are living. One was of Hindus, one was of Muslims, and one was of untouchables. ठीक है, उनका व्यू पॉइंट था ये. मतलब he was trying to consider untouchables as a separate community. ठीक,
तो गांधी जी ने व्हेन गेव द नेम ऑफ दिस हरिजन, तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल, tried to organize all the untouchables and he gave a special name, depressed classes. ठीक है, all the, just a minute बेटे, and I am having class right now. Within I am having class. Yes. So his viewpoint was that he जो untouchables है, he gave the name, that he organized the Dalits into, you can see the second para. Let me take out next page. Just a minute, better. Actually, I forgot to bring the next slides side by side. Yes. This page number 68, second para. ठीक है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, he organized the Dalits into Depressed Classes Association in 1930. You can underline all the lines of this para are very very important. तो he organized, ठीक है, and he gave special name Depressed Classes Association. बजाय instead of saying, instead of calling untouchables or Harijan, उन्होंने कहा कि depressed classes, ठीक है. अब उनका क्या हुआ, his viewpoint was clashing with the viewpoint of Mahatma Gandhi. अब क्या हुआ, at that time, now we know very well, the only principle which was being followed by the British colonial government, that was to divide the Indian society, because that was their policy. They were very cunning people. Divide and rule policy was always used by them, कि इंडियन पीपल को आपस में एक दूसरे से लड़ा के रखो, आपस में इनकी फूट पड़ती रहे, डिसयूनाइटेड रहें, डिसइंटीग्रेटेड रहें. जितना आपस में लड़ेंगे उतना ही इट वुड बी इजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर इंडिया, है ना. मतलब ये पॉलिसी थी उनकी. तो अब वो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अर्लियर दे गेव स्पेशल इलेक्टोरेट राइट टू द मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, स्पेशल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, स्पेशली सेपरेट इलेक्टोरेट. तो पहले वो उन्होंने वो मुस्लिम्स को दिया था. अब नाउ डॉक्टर अंबेडकर वाज डिमांडिंग कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, they should also be given a right of separate electorate. अब now the question may come to your mind कि जी what is the meaning of this separate electorate? Separate electorate होता है किसी एरिया में जो दलित्स थे या डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे. ये डॉक्टर अंबेडकर का पॉइंट था कि उन डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो अलग से वोट करे अपने ही कैंडिडेट को, अपने ही डिप्रेस्ड क्लासेस में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही वोट करें. दूसरे जो आम सोसाइटी के लोग हैं, जनरल अदर्स हैं, बाकी की कम्युनिटीज के लोग हैं, वो उनको वोट ना करें. सिर्फ जो कैंडिडेट है जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में वो भी डिप्रेस्ड क्लासेस का हो, उसको वोट देने वाले लोग भी डिप्रेस्ड क्लासेस के हों. तो जो वोट देते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इलेक्टोरेट. ठीक है, जैसे अभी 2-3 साल के बाद यू विल ऑल्सो बी ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, you will also have a right to vote in the elections. तो आपको क्या कहा जाएगा कि you are an electorate, कि भी आपको वोट डालने का हक है. ठीक है, तो ऐसे ही तो डॉक्टर अंबेडकर वाज डिमांडिंग फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. तो दैट डिमांड वाज एक्सेप्टेड आल्सो बाय द ब्रिटिशर्स. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि सारी कम्युनिटीज के लोग आपस में लड़ें, आपस में डिसयूनाइट रहें. दिस वाज देयर मेन इंटेंशन. बट ऑन द अदर साइड, other Dalit leaders, depressed classes ke leaders, that's not given here, I am just telling you for your knowledge, it's not written in the book. Other एक और दलित लीडर थे, डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे, MC राजा. It was his name, MC राजा. तो MC राजा very important, equally important, जैसे at that time Dr. Ambedkar was famous, तो in the same manner MC राजा was equally famous and popular among the depressed classes. तो उन्होंने, he understood this policy of the Britishers कि भाई they are dividing us. Otherwise जो depressed classes थे, they were not separate from Hindu community. They were very much part and part. They were and they are very much part and parcel of the same Hindu community. But जो MC राजा थे, he understood this policy of divide and rule of the Britishers, and he strongly kept forward this idea कि there should not be any separate electorate. There should be general electorate. General electorate होता है कि सारे लोग वोट डालें. कोई भी कंटेस्टेंट जो खड़ा होता है इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी पर्सन जो खड़ा होता है, उसको वोट डालने वाले सारे लोग मिक्स्ड हों, इकट्ठे हों. उसको उसमें सेपरेशन नहीं करनी चाहिए कि जनरल कोई किसी ने किसी को वोट देना है या मुस्लिम्स ने किसी को वोट देना है, उन्हीं को ही देना है.
मुस्लिम को ही वोट देना है या दलित ने दलित को ही वोट देना है, ही वाज टोटली अगेंस्ट दिस थिंग। अब क्योंकि वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट लीडर थे और उनकी बात को भी बहुत सुना जाता था, माना जाता था, एंड साइड बाय साइड जो महात्मा गांधी थे, ही वाज आल्सो अगेंस्ट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट। उनको भी लगता था कि सेपरेशन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अगर हम कोशिश ही करेंगे कि डिसइंटीग्रेटेड रहे, डिसयूनाइटेड रहे, तो हाउ विल इंटीग्रेशन कम? अगर हम दूर दूर होने की ही काम करते रहेंगे तो फिर इकट्ठे कैसे होंगे, यूनाइटेड कैसे होंगे? हाउ कैन वी मेक अवर सोसाइटी गुड सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी कैसे बनाएंगे इफ वी कीप ऑन डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर? सेपरेशन को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि इकट्ठे होना चाहिए। तो अब क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वो अलग थलग पड़ गए, मतलब बाकी के सारे लोग उनकी बात को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी को, सेपरेशन की आइडियोलॉजी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, दैट वाज नॉट being liked by Mahatma Gandhi, many other leaders in the Indian National Congress, as well as other important leader, that was MC Raja. So फिर ultimately Dr. Ambedkar has to took his steps back, पीछे होना पड़ा, एंड महात्मा गांधी थ्रेटन्ड कि अगर आप अपनी बात को पीछे नहीं लोगे तो आई विल स्टार्ट फास्टिंग अनटू डेथ, जिसको बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार आता है कि मैं मर जाऊंगा पर ये मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, है ना, खाना पीना बंद कर देना। तो फिर एट दैट टाइम अंबेडकर वाज फोर्स्ड टू टेक हिज डिसीजन बैक एंड ही मेट विद गांधी जी, और वहां पर उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड पूना पैक्ट। इन द सेम पैरा इट इज रिटन पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ठीक है, तो वो पैक्ट, PACT, पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, बातचीत होना, समझौता हो जाना, तो दैट टुक प्लेस इन 1932। वेरी पॉपुलरली इट इज कॉल्ड पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट का क्या था, रिजल्ट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट जो डिमांड ऑफ डॉक्टर अंबेडकर थी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट वाज डिस्कार्डेड। नाउ देयर वुड बी जनरल इलेक्टोरेट, कि कंटेस्टेंट कोई भी खड़ा हो, सारे ही लोग उसको वोट डालेंगे, इकट्ठे वोट डालेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ फिर अल्टीमेटली, जो और सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, मुस्लिम कम्युनिटी, अब मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन भी दैट वाज आल्सो वेरी ल्यूक वार्म रिएक्शन। ल्यूक वार्म का क्या मतलब होता है? कई बार ठंड होती है ना, जब बिगनिंग ऑफ विंटर, तो आपको ठंड लगती है, तो आप नहाने के लिए व्हेन यू गो टू बाथरूम तो आपको लगता है पानी बहुत ठंडा है, तो देन यू फील कि थोड़ा सा गर्म पानी हो जाए हल्का सा, तो देन इट वुड बी बेटर, है ना। तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके यू जस्ट मिक्स इन दैट बकेट। अब वो एक नॉर्मल हो जाता है, उसका जो चिलिंगनेस है, चिल्ड वाटर है, वो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, तो हम उसको कह देते हैं ल्यूक वार्म, मतलब जैसे हाथ डाल के भी चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे वी डोंट हैव टू गो टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब होता है नॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है ना, ह्यूमन लेवल के ऊपर अगर इसकी बात करें, वी यूज दिस टर्म, तो वी कैन से नॉट वेरी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स। अब वाई मुस्लिम्स आर नॉट गिविंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स? बिकॉज दे वर फीलिंग कि भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं या लीडर्स हैं, दे वर बिलोंगिंग टू हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनल टेंशंस वर ऑलवेज देयर इन अवर सोसाइटी। तो उनको लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी है दैट वाज बीइंग डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो इस करके अवर डिमांड्स विल नॉट गेट फुलफिल्ड, उनको ऐसे लगता था। मोर ओवर राइट्स वर आल्सो देयर, आपस में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता ही रहता था एट वन और द अदर प्लेस। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स वर देयर, इस तरह का था। ठीक है, बिकॉज कम्युनल आइडियोलॉजीज वर डिफरेंट, इवन नाउ दे आर डिफरेंट, तो इस करके उनको लगता था। अब आपको एक याद होगा, यू हैव रेड इन 8th क्लास आल्सो, वन मुस्लिम लीग पार्टी वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 1906। तो बाय द टाइम दिस 1930s का जो डेकेड आया, तो तब उनके एक लीडर हुए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, MA जिन्ना भी बोल देते हैं। तो अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम बात मान लेते हैं, गांधी जी के साथ चलते हैं, बट हमें क्या चाहिए? यू कैन सी ऑन नेक्स्ट पेज, जस्ट ए मिनट, yes, these paras, here it is written कि हमें, if Muslims were assured reserved seats in Central Assembly and representation in the proportion of population in Muslim dominated provinces, कि हमें सेंट्रल असेंबली, जैसे वी कैन से जैसे आजकल पार्लियामेंट को बोलते हैं, तो वहां पर उनको रिजर्व सीट्स दी जाए, मतलब कुछ सीटें रखी जाए कि जहाँ पे मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स ही होंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ही होंगे। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स थी उस समय, बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो बंगाल साइड है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सारा बंगाल था। बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी वाज देयर, एज वेल एज पंजाब।
अपने वाला पंजाब नहीं, एट दैट टाइम, ये पार्टीशन से पहले की बात है, तो जो पाकिस्तान में भी हमारा जो पंजाब है दैट इज वेरी लेस जोग्राफिकली वेरी लेस एरिया। तो पहले पंजाब, हमारे वाला हरियाणा, हिमाचल एंड मेजर पार्ट ऑफ पंजाब वाज इन पाकिस्तान। तो उस समय तो इकट्ठा ही था। तो वहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी थी, ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, हार्डली 54 के 56% थी। बट वो जैसे ही 50% से ऊपर होता है, मुस्लिम स्टार्ट थिंकिंग कि उनकी मेजोरिटी हो गई है, तो वो चाहते थे कि वहां पर उनको उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए और सेंट्रल असेंबली में भी उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाए। अब ये बात बाकियों ने नहीं मानी। कर करा के क्या हुआ, फिर दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर, अर्लियर ऑल्सो दिस डिमांड वाज देयर इन माइंड फॉर सेपरेशन, पाकिस्तान कंट्री के लिए डिमांड रखी। हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड हैव हर्ड, एक बड़ा हम गाना बोल गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोलते हैं ना, मोहम्मद इकबाल रोट दिस, अल्लामा इकबाल बोल लेते हैं, बट चलो एनी हाउ, मोहम्मद इकबाल ही रोट दिस सॉन्ग। अब 1904 में ही रोट दिस सॉन्ग कि भी सारे जहां से अच्छा। अभी उस समय मुस्लिम लीग वाज नॉट फॉर्म्ड। तो उसके बाद 1910 में, आप सोचो विद इन 6 ईयर्स, 1904 में लिख रहे हैं हिंदुस्तान सबसे अच्छा, और 1910 में ही वाज राइटिंग चीनो अरब हमारा, पाकिस्तान की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। मतलब ही स्टार्टेड फेवरिंग फॉर सेपरेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड ही वाज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके उसकी तारीफ में गाने लिखने स्टार्ट कर दिए। सो इस तरह की जो सेपरेटिस्ट फीलिंग्स थी, दे वर बीइंग एनकरेज्ड बाय मुस्लिम लीग पार्टी। ठीक है, तो अभी तक फॉर टुडेज वर्क वी डू दिस ओनली। लेट मी शो यू, आई जस्ट वांट टू शो यू few pictures, just a minute, because these places we mentioned in our previous lectures. Just a second. Yes, on one day, on the very first day, I told you about Vietnam country. See this is Myanmar. ठीक है, इंडिया के साथ जो लगता है। आफ्टर दैट देर इज थाईलैंड, आफ्टर दैट कंबोडिया इज देयर। ठीक है, कंबोडिया के साथ बाद में यहाँ पे एक और कंट्री है, लाओस इज देयर। देन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ईस्ट साइड, ना, एशियन कंट्री के, एशियन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड, ये सारा वियतनाम। ये देखो ऊपर से लेके कमिंग डाउन कोस्टल है सारा, ये सारा इधर है साउथ चाइना सी। तो ये वियतनाम कंट्री है। हियर जैसे वी पीपल स्टार्टेड एंटी colonial मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो सेम वे दीज पीपल स्टार्टेड एंटी colonial मूवमेंट अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल, बिकॉज देयर कंट्री वाज colonized by फ्रांस। ठीक है, then another I told you about this central powers and allied powers. You can see this, I will send these pics also to you in your class group, but here you can see ये जो पर्पल सा कलर है ये सारी सेंट्रल पावर्स हैं, एंड दिस लाइट ग्रीन कलर एलाइड पावर्स। ठीक है, एंड देन वन अदर थिंग वाज देयर, यस, when Mahatma Gandhi started his salt march, Dandi march, so this is a picture of his Sabarmati ashram, अहमदाबाद में। मतलब from this ashram he started his march। ठीक है, अब तो ये उनकी मूर्ति लगाई हुई है, मतलब ये वाली। ठीक है, ये ऐसे वहां पे आश्रम था, तो फ्रॉम दिस प्लेस ही स्टार्टेड हिज मार्च। ठीक है जी, सो विद दिस वी आई एम गोइंग टू कंक्लूड